Good afternoon, everyone. Namaskar. I, Dr. Jaskaran Singh Sethi, on behalf of the organizing committee for the Silver Jubilee celebrations of Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center in New Delhi, welcome you all for the last in the series of public awareness lectures today. जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर हमारे देश में एक महामारी का रूप धारण करता जा रहा है। हमारे देश में मुंह और गले के कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और स्तन कैंसर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये सब कैंसर हमारी जीवन शैली से लिंक हैं और अगर हमारे पास सही जानकारी हो तो हम इन कैंसर से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। हमारे आज के वेबिनार का विषय भी इसी के ऊपर है। आज हम चर्चा करेंगे ऑन कम्युनिटी बेस्ड कैंसर प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग। To enlighten us on this pertinent topic, we have amongst us Dr. R.A. Badwe, Director of Tata Memorial Center, Mumbai. Sir, it is a pleasure to have you here. It's a privilege that you are amongst us. Dr. Badwe needs no introduction. He is an internationally renowned oncologist, an eminent scholar. He is an international opinion leader in oncology and is a member of developing cancer care strategies for Government of India and WHO. He has an illustrious career in which he has published more than 170 original research articles and papers. He has received prestigious national honors, awards, and gold medals, which include Padma Shri by the President of India and the Lal Bahadur Shastri Award, National Award for Excellence in Public Administration, Academics, and Management. Both of these were conferred to him in the year 2013. Sir holds internationally also, he has received many awards, notably from the National Cancer Institute, USA, and the UICC. He holds positions in the editorial boards of many renowned oncology journals world over, like The Lancet, Annals of Oncology, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सर्जरी एंड कैंसर टू नेम अ फ्यू। इससे पहले कि डॉक्टर बडवे आज हमें इस विषय पर प्रकाशित करें, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम जूम और फेसबुक के माध्यम से लिंक्ड हैं और आप चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज एंड क्वेश्चंस भेज सकते हैं, जिन्हें कि हम चर्चा के बाद लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर बडवे, नॉट holding myself between you and the audience, I request you, sir, please kindly proceed with your talk. Thank you very much. It is indeed a pleasure to be part of this August gathering. And it's even a greater pleasure to speak about what can be done at community level. It's always said that an ounce of prevention is better than cure. But more importantly, the other side of this story needs to be fully understood. क्योंकि कर्करोग बहुत कम लोगों को होता है, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन कम लोगों को होता है। यानी कि हर 100 लोगों में से पूरी जिंदगी में 8 या 9 लोगों को ही होगा, पूरी जिंदगी में। तो what is important to understand कि 92 लोगों को ये नहीं होगा 100 में से। This is very important to understand कि it is not a very common thing. लेकिन इसके बारे में डर है और डर है तो वो एक्सप्लॉइट भी हो सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको कुछ नंबर्स बताऊंगा, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। I love maths. So numbers are going to be there in my presentation all throughout, but I'll try and explain so that they are made simple and they are implementable. कोशिश ये रहेगी कि कर्करोग हमारे यहाँ कैसा है, हमारे गांवों से लेकर शहरों तक, how bad it is, and how good are we compared to the West. On the background that all of us believe that the West is best. I'll try and
get rid of all these myths by the time I finish my talk. Can I have my presentation, please? So let me start with the community medicine and wherever I had begun to begin with. मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि 100 में से 8 या 9 लोगों को उनके पूरे लाइफ टाइम में ये कैंसर की बीमारी होती हो, तो बाकी लोगों को ये नहीं होती। तो इसके बारे में कितनी चिंता करनी है ये आप सोच लीजिएगा। I will get on to some slides. Next slide, please. So ये रहे कुछ नंबर्स। भारत के गांवों में ये नंबर हर 1 लाख लोगों में हर साल 40 या 50। सेमी अर्बन इंडिया में, या समझो मेरठ कहो या लुधियाना कहो या लखनऊ कहो, यहां नंबर होंगे हर 1 लाख लोगों में हर साल 60 या 75, 60 से लेकर 75। आप लुधियाना में कहोगे तो 75 रहेगा, आप लखनऊ में कहोगे तो 60 रहेगा। अर्बन इंडिया, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ 90 से लेकर 100, हर साल 1 लाख लोगों में से 90 या 100 लोगों को होगा हर साल। ये नंबर यूएस और यूके में 325 है, तो हमसे कम से कम 3 गुना ज्यादा कर्क रोग वहां है। तो हमारे यहां प्रॉब्लम किस तरीके का है कि हर साल 5 से 10% लोग, हर साल नहीं, हर 10 साल में, हर डेकेड में, हर 10 साल में जब भी सेंसस होता है तो वो सेंसस में हम ये जानते हैं कि 5 से 10% लोगों का जो हैबिटेट है, जहां रहन सहन का तरीका है, ये अर्बन हो जाता है या सेमी अर्बन हो जाता है। और अर्बनाइजेशन इज इनएविटेबल, अर्बनाइजेशन होना ही है। तो धीरे धीरे ये जो 60-75 है ये 100 के पास आ जाएंगे, और जो 40-50 है ये 60-75 के आसपास आ जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर बढ़ा है। लेकिन आप देखा जाए तो पिछले 20 साल में ये 90 से 100, 60 से 75, 40 से 50, ये नंबर एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। रूरल हैबिटेट देखो, रूरल पॉपुलेशन देखो, तो ये नंबर पिछले 20 साल से वही। सेमी अर्बन यही है, और बंबई कहो, दिल्ली कहो, ये नंबर 9 से 100 में है। इस पे कोई अंतर हुआ नहीं है। ये अच्छी बात है कि यहाँ जो हैबिटेट है ये मैक्सिमम यहां तक पहुंच सकता है, ये यहां तक नहीं पहुंचा है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये अलग अलग क्यों है, हम में और भारत में इतना डिफरेंस क्यों है? जिस चीजों की स्क्रीनिंग वहां होती है उन चीजों का नंबर देखो कितना बड़ा है। प्रोस्टेट कैंसर हर 1 लाख लोगों में 50, हमारे यहाँ 9। लंग कैंसर हर 1 लाख लोगों में 60, हमारे यहाँ 10। कोलन कैंसर हर 1 लाख लोगों में 55, हमारे यहाँ 6। कोलोरेक्टल साथ में देखो तो यह नंबर 10 रहेगा और यहाँ का नंबर 80 हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कैंसर उन लोगों में ज्यादा है, और इसका कारण हम देखेंगे क्यों ज्यादा है और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे यहाँ क्या अलग है? हमारे यहाँ ओरल कैंसर अलग है। उनके यहाँ हर लाख लोगों में 4, हमारे यहाँ 23 अब तक। इन सम रीजन्स ये 25, 28, 30 के आसपास हुआ है। लेकिन ये तंबाकू के सेवन के कारण है, ये भी तंबाकू के सेवन के कारण है। और ये इस तरीके से है कि आप तंबाकू चबाते हो, चू करते हो, तो ये कर्क रोग अच्छा ज्यादा होगा। और स्मोक करते हो, डीप इनहेलेशन स्मोक, तो ये कर्क रोग ज्यादा होगा। अब सोच लीजिए कि बाहर का तापमान 34 है, समर में 40 से ऊपर है, आप हाथ में सिगरेट लिए खड़े हो तो इट विल बी इम्पॉसिबल कि आप डीप इनहेलेशन करो।
क्योंकि ये स्मोक का जो टेम्परेचर है ये आपको अनकंफर्टेबल कर देगा। तो इसी वजह से हमारे यहाँ के जो स्मोकर्स है, बहुत सारे ओरल स्मोकर्स हैं, मुंह में वो देते हैं, वहीं से निकोटीन अंदर चला जाता है और उन्हें अच्छा लगता है। तो इसलिए हमारे फेरिंजियल कैंसर ज्यादा है, लैरिंजियल कैंसर है, ओरल कैंसर है। लेकिन हमारे यहाँ ओरल कैंसर ज्यादा है क्योंकि हमारे यहाँ चूअर्स ज्यादा है, तंबाकू खाने वाले लोग, चबाने वाले लोग ज्यादा है। ब्रेस्ट कैंसर को देख लीजिए, 130, रूरल कैंसर रजिस्ट्री में 9। आप शायद कहेंगे कि ये जो आप रूरल कैंसर के बारे में बात करते हो 40 या 50, वहां तो कई लोग मरते होंगे कैंसर से, हमें पता भी नहीं लगता होगा। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि हम इंडिया में महाराष्ट्र में बार्शी की तरफ, महाराष्ट्र में डेरवन में, और आंध्र प्रदेश में अम्बिलिकाई में, विशाखापट्टनम में जो नियरेस्ट रूरल रजिस्ट्री है वहां, और संगरूर मानसा डिस्ट्रिक्ट में, ये सभी जगह पे हम रजिस्ट्री चलाते हैं। और हर घर में हम साल में एक बार विजिट करते हैं कंफर्म करने के लिए कि वहां कैंसर है या नहीं। और कैंसर नहीं है तो कैंसर कम है। सोचो, बार्शी में हर 1 लाख स्त्रियों में 9 स्त्रियों को कैंसर होता है। ये नंबर इंग्लैंड अमेरिका में 120 है। अब ये देखें कि बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इसकी जांच करना चाहती है। $2 मिलियन वहां डाले हुए हैं बार्शी में कि यहां कर्करोग क्यों कम है, और वहां से वो क्या ले जा सकते हैं इंग्लैंड अमेरिका में कि वहां का कर्करोग कम हो जाए। सोचो, उन्हें भी लगता है कि वेस्ट इज नॉट बेस्ट, इंडिया इज बेस्ट, यहां से कुछ ले जाना चाहते हैं वो। यूट्राइन सर्विक्स यूएस में 7 है हर 1 लाख स्त्रियों में, हमारे यहाँ 24 है। लेकिन बंबई में देखें, दिल्ली में देखें तो ये नंबर 7.5 से 8.5 है। तो हम बहुत अलग नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स से यूट्राइन सर्वाइकल कैंसर में। हमारे यहाँ यूनिकली कैंसर ज्यादा है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, लिवर गॉल ब्लैडर, दिल्ली में लिवर गॉल ब्लैडर, और नेजोफेरिंक्स सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है। नॉर्थ ईस्ट में लिवर और गॉल ब्लैडर भी ज्यादा है। तो ये हमारे यहाँ के यूनिक कैंसर है। ये कैंसर इंग्लैंड अमेरिका में नहीं। लेकिन ये भूल नहीं सकते कि टोटल कैंसर पुट टुगेदर बहुत कम है हमारे पास। और अब इन कैंसर की तरफ हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैंसर से कितने लोगों की मौत होती है? यूनाइटेड स्टेट्स में ये एज स्टैंडर्डाइज रेट है, तो इसमें कंपैरिजन डायरेक्टली हो सकती है कि वहां हर 1 लाख लोगों में हर साल 105 लोगों की डेथ कैंसर से होती है। हमारे यहां ये आंकड़ा 64 है। तो सोच लीजिए, अभी तो नंबर ये बताते हैं कि इंडिया इज द बेस्ट। अब आगे बढ़े कि ये 64 भी क्यों हम अपनी खुद की जान गंवाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देख लीजिए, भारत में 40% ऑफ द कैंसर्स आर रिलेटेड टू टोबैको। जो मैंने कैंसर बताए हैं, 1 लाख में 100 शहरों में, और 1 लाख में 75 छोटे गांवों में, छोटे शहरों में, और 1 लाख में 40-50 गांव में। ये नंबर में 40% टोबैको रिलेटेड कैंसर, 15% ओबेसिटी रिलेटेड कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर ये महत्वपूर्ण है उसमें। लेकिन ओबेसिटी, मोटापे के कारण 10 या 15 अलग अलग तरीके के कर्करोग होते हैं। तो दीज आर डेफिनेटली प्रिवेंटेबल। आप एक सोच लीजिए कि ये जो 3 कर्करोग है, ये जो 10-15 कर्करोग है ओबेसिटी वाले, ये हमारे यहाँ आजकल कम है, वो वहां बहुत ज्यादा है। और ये ऐसा ना हो कि अगले 10 साल में हम उनसे कॉम्पीट करने लगे। और ये हो सकता है। जब भी मैं स्कूल में जाता हूं बताने के लिए कि तंबाकू कितना बुरा है, बच्चों से बातें करता हूं, तो आजकल के बच्चे स्कूल में देखे जाए सब रॉली पॉली है।
इतने जाड़े हैं कि कुछ पूछो नहीं। अब इतने ओबेज बच्चे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे टॉक्स के बाद जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूं तो सब माएं एक ही कहती हैं कि बच्चा खाता नहीं। अब बच्चा खाता नहीं तो मोटा कैसे हो जाता है? बात यह है कि खाना हमारे यहाँ ज्यादा है और जो मैदानी खेल हैं वो कम से कम हो चुके हैं। कम से कम लोग आजकल मैदान में है, घर में बैठो, टीवी पे बैठो और कंप्यूटर पे खेलते रहो। अब इसके कारण ओबेसिटी बढ़ रही है और ओबेसिटी से 15% कैंसर आजकल हमारे यहाँ है और 15% कैंसर इन्फेक्शन के कारण है। इन्फेक्शन रिलेटेड कैंसर समझो गर्भाशय मुख का कैंसर, योनि मार्ग का कैंसर पुरुषों में और स्टमक कैंसर, ये इन्फेक्शन रिलेटेड है। ये सभी कैंसर हमारे शहरों में बहुत रैपिडली कम हो रहे हैं। तो ये जरूरी है जानना कि ये जो कैंसर जो हमारे गांवों में समझो ये सर्विक्स है, यूट्राइन गर्भाशय मुख का कैंसर है, ये कैंसर यदि हमारे गांव में ज्यादा है, इसका कारण ये है कि यदि आप वहां देखे जाए तो सब पुरुष वेल के यहाँ जाके स्नान करते हैं, जो कॉमन कुआं है वहां जाके स्नान करते हैं, कपड़े वही हैं, जेनेटल हाइजीन बहुत पुअर है। अब इस आदमी को यदि किसी तरीके का सेक्स में इंडल्ज हो जाए तो वो बहुत सारा एचपीवी वायरस उसमें फीमेल्स पे डाल देगा और हमारे फीमेल्स में ये कैंसर ज्यादा होता है गांवों में। शहरों में रनिंग वाटर है, प्राइवेसी ऑफ बाथरूम है, तो जेनेटल हाइजीन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। आप ये कहेंगे कि शहर और गांव में और कितने अंतर हैं, आप इसी के बारे में क्यों कहते हो? इसलिए कहता हूं कि हमारे जो मुस्लिम बांधव हैं, जो मुस्लिम बांधव हैं रूरल एरिया में, बार्शी में जो मुस्लिम बांधव हैं, वहां बार्शी के हिंदू लोगों में कर्करोग का प्रमाण, सर्वाइकल कर्करोग, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का कर्करोग का प्रमाण हर 1 लाख स्त्रियों में हर साल 28 है, 28। वहीं एरिया के मुस्लिम लोगों में ये प्रमाण सिर्फ 5 है, शहरों में भी 5 है। आप मिडिल ईस्ट में चले जाओ, गर्भाशय मुख का प्रमाण सिर्फ 5 है हर लाख स्त्रियों में। तो ये कर्करोग है कम जरूर, और ये इसे कम करने के लिए और किसी अलग चीज की कोई जरूरत नहीं है। शारीरिक स्वच्छता रखो, या तो आप जैसे मुस्लिम लोगों में है वैसे सुनता कर सकते हो, ये चॉइस हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मैं और अलग और कुछ एडिशनल डेटा बताऊंगा कि वैक्सीन से कुछ हो सकता है कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कैन आई हैव माय नेक्स्ट स्लाइड? यस सर। हम तंबाकू की तरफ देखेंगे पहले। अप्रोक्सीमेटली 1 million tobacco deaths would occur per year during 2010. This number in 2021 would be anywhere up to about 1.3 million. So many deaths will occur because of tobacco. तंबाकू से 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है भारत में। नेक्स्ट वन, इसके बारे में क्या किया जाए? ये डेटा है इंग्लैंड का। सोच लीजिए, लंग कैंसर से डेथ, ये जो सफेद सर्कल हैं, कभी भी नहीं स्मोक करने वालों में लंग कैंसर से डेथ होता है 1 हर लाख लोगों में 1। ये एज है, हर एज पे कैसे कैसे होता है। समझो किसी ने 30 साल तक स्मोकिंग किया और स्टॉप कर दिया, तो देखिए किस तरीके से मृत्यु होती है उनके लंग कैंसर से। जो 50 साल तक नहीं किए हैं स्मोकिंग और वो बंद कर दिए, अब देखिए कहां तक चला जाता है, 6%, 6% की मौत होगी लंग कैंसर से। और यदि कंटिन्यूड स्मोकिंग है तो कहां है देख लीजिए,
16% से ज्यादा लोग मर जाएंगे यदि स्मोकिंग कंटिन्यू करेंगे। तो स्मोकिंग करना ये बहुत इसके बड़े दुष्परिणाम है, मैं आगे और भी बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टबैको, जितना ज्यादा यूज करे उतना ज्यादा डेथ होगा तंबाकू से। और ये सिर्फ लंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ओरल कैंसर भी वैसे ही है, जितना ज्यादा यूज करे उतना ज्यादा उससे तकलीफ हो सकती है। और एनी टाइम स्टॉप करो तो उसका असर अच्छा हो सकता है कि मरने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाउ डू वी कंट्रोल दिस, ये कंट्रोल कैसे करें? एक तो खुद सोच लीजिए कि नहीं करना है। यदि आप ठान लो कि ये नहीं करना है, बहुत इजी है। और शुरू करने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। सरकार क्या कर सकती है? सरकार कर सकती है ये सिंपल प्रिंसिपल, ट्रिपल द टैक्स, हाफ द यूज एंड डबल द रेवेन्यू। सरकार क्यों कहती है ये ऐसे करना चाहिए? क्योंकि उसमें रेवेन्यू है, ये कोई खरीदता है तो उसका परसेंटेज सरकार को टैक्स पे मिल जाता है। तो ट्रिपल करो कॉस्ट, डबल होगा रेवेन्यू और यूज हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देख लीजिए, ये इंप्लीमेंट करने से फ्रांस में क्या हो गया। दिस वाज द कंजम्पशन, और जब से प्राइसेस बढ़ा दी है ये कंजम्पशन इतना कम हो चुका है। तो ये पॉसिबल है, ये जरूर पॉसिबल है कि आप कम कर सकते हो, लेकिन आप एक बार ठान लो कि ये नहीं करना है। मेरे 2 दोस्त ऐसे हैं कि जिनसे हमने प्राइस एक प्रॉमिस कर लिया कि अभी के अभी छोड़ दो, नहीं तो हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, आपको मिलेंगे ही नहीं इसके आगे। बस 2 लोग हैं, दोनों ने तब के तब बंद कर दिया, आज बहुत खुश आनंद में है। सिर्फ कर्करोग के बारे में नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस इज द गवर्नमेंट इनकम डबल्ड फ्रॉम 6% to 12%। नेक्स्ट वन प्लीज। आप तंबाकू बंद करो, कैंसर कम होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा, हार्ट अटैक कम होगा, स्ट्रोक कम होगा, हेल्थ केयर पे बर्डन कम होगा, हमारे अस्पताल कम भरेंगे और डेथ रेट कम हो जाएगा। क्यों न करें हम? मैं गुजरात में याद नहीं आ रहा है क्या डिस्ट्रिक्ट का नाम है, जो सबसे ज्यादा तंबाकू प्रोड्यूस करता था, वहां हम बात करने गए थे। वहां एक बहुत बुजुर्ग फार्मर थे, शेतकरी। सब हमारी बातें होने के बाद कहने लगे, जब हम छोटे थे तब तंबाकू का पेड़ कंपाउंड की तरफ से लगाया जाता था, क्योंकि यदि उसका कंपाउंड लगा दो तो जो बीच में जो उग रहा है उस पे कोई कीटक नहीं आता। जंतु को पता है कि तंबाकू बुरा है, तंबाकू के लिए कोई इंसेक्टिसाइड की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट्स आते ही नहीं है उसके ऊपर। आप गाय भैंस को देखो, यदि कंपाउंड पे टोबैको है, तंबाकू का जो पेड़ है, तो वो अंदर नहीं आते, क्योंकि उसकी बू से वो बिल्कुल डरते हैं। सोचो, ये सभी लोगों को पता है तंबाकू कितना बुरा है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं। हम दौड़ के जाएंगे, घर से बाहर दौड़ के जाएंगे और हमारा जो पॉइजन है वो खरीद के ले आएंगे। सोचना जरूरी है आज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बाकी प्रिवेंशन, मैंने ऑलरेडी कहा है आपसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए पर्सनल हाइजीन, रनिंग एंड पोर्टेबल वाटर एंड गुड फूड प्रिजर्वेशन। हमारे बुजुर्गों ने यह भी कहा था कि आज खाना बनाया है, आज ही खत्म कर दो। रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, लेकिन वो प्रिजर्वेशन ठीक नहीं है। हमारे गांव में प्रिजर्वेशन ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज कुक करते हैं और कल सुबह खा लेते हैं जो कुछ बचा कुचा है। ऐसे फूड में कुछ जंतु ऐसे बन सकते हैं जिससे स्टमक कैंसर हो सकता है। हमारे गांवों में स्टमक कैंसर ज्यादा है, शहरों में इसका प्रमाण बहुत कम हो चुका है। डाइट, मैंने कहा आपसे, डाइट ओबेसिटी से ही लिंक नहीं है। डाइट में और एक चीज इंपॉर्टेंट है, हमारे डाइट में नॉन वेजिटेरियन डाइट की प्रमाण कम है, रेड मीट का प्रमाण बहुत कम है। कैसा कम है? यदि मैं कहूं कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैं शायद हफ्ते में 2 या 3 बार कुछ नॉन वेजिटेरियन डिश खाऊंगा,
और जब खाऊंगा तब उसके साथ में वेजिटेबल होंगे, कुछ लीफी वेजिटेबल होंगे, कुछ कचूम्बर होगी, या तो कुछ पिकल्स होंगे, और बहुत सारी जगह में नॉनवेज के साथ एक ग्रीन चिली दी जाएगी और हमारे यहाँ के लोग मजे से उसे चबा लेंगे। यदि आप नॉनवेज के साथ ग्रीन चिली खा लो तो जो ट्रांजिट टाइम है हमारे यहाँ जो इंटेस्टाइन में, वो जल्दी हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो ये जो डीएनए है रेड मीट का, इसका एक्सपोजर टाइम कम हो जाता है। हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन जो खाने वाले हैं बहुत स्पाइसी फूड लेते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी टेस्ट बढ़ती है और उससे प्रोटेक्शन भी है। यदि आप वेस्टर्न किसी आदमी को, अमेरिका वाले आदमी को या जर्मन आदमी को पूछ लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन हो तो क्या खाते हो, वो कहेगा सुबह ब्रेकफास्ट में मैं कोल्ड कट्स खाता हूँ, मीट, फिर लंच में मैं स्टेक खाऊंगा। स्टेक क्या होता है? स्टेक होगा एक बड़ा फ्लेश का टुकड़ा होगा जिसमें कोई मसाला नहीं होगा, कुकिंग तो कुछ नहीं होगा, और ऑफ कोर्स उसके बाद वेजिटेबल होगा। वेजिटेबल क्या है? 2 छोटे पोटैटो, वो मिजरेबल पोटैटो कॉर्नर में रहेंगे, वो खा लेगा, कहेगा मैंने आज का मेरा वेजिटेबल का ये बहुत बढ़िया है, खा के हो गया मेरा वेजिटेबल। लेकिन और शाम के खाने में फिर से नॉन वेजिटेरियन होगा। तो हर खाने में नॉन वेजिटेरियन 365 डेज ऑफ द ईयर। इसीलिए वहां कोलन कैंसर, बड़े इंटेस्टाइन का जो कैंसर है, बड़े आंतड़े का कैंसर, वो हर 1 लाख लोगों में 60 लोगों को होता है। हमारे यहाँ सिर्फ 6 या 7 लोगों को ये कर्क रोग होता है। तो हमारे यहाँ की कुछ हैबिट्स बहुत अच्छे हैं। वेस्ट इज बेस्ट कहने में बहुत बुराई है। दूसरी चीज, ओबेसिटी। 1 मिनट आप पीछे, हर शहर में एक डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक होना चाहिए। ओबेसिटी हमारे गांव में बहुत कम है, शहरों में बढ़ती जा रही है। यदि वॉकिंग सिटीज रहे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जहां बहुत सारी ऑफिसेस है, ऑफिस प्रोमिनेंट एरिया है, वहां आप व्हीकल्स लाना बंद कर दो। हमारे बंबई में जो कोस्टल रोड बन रहा है, इसके बनते समय हम इसके पहले वाले जो चीफ मिनिस्टर से उनसे बातें की थी कि आप ये डबल डेकर बना दीजिए। नीचे का जो रोड होगा उस पे आप जो ट्रेवलेटर्स बनते हैं एयरपोर्ट पे जो होते हैं जिसपे आप चलते हो, ये आप वहां लगा दीजिए, और जो पहला ट्रेवलेटर होगा वो 5 किलोमीटर से चलेगा, या यही स्पीड जो स्पीड में आप फुटपाथ पे चलते हो। यू कैन इजीली स्टेप ऑन टू द फर्स्ट ट्रेवलेटर, उस पर चलने लगो, आप 10 किलोमीटर से चलोगे। नेक्स्ट ट्रेवलेटर शुड मूव एट 10 किलोमीटर्स, और उसके बाजू वाला 15 किलोमीटर। आप धीरे धीरे चल के आप आखिरी एस्केलेटर पे चले जाओ, वहां चले, आप हर घंटे में 20 किलोमीटर चलोगे। आप मुझे बताइए किस सिटी में, हमारे यहां ही नहीं पूरे दुनिया में, किस सिटी में आप 20 किलोमीटर पर आवर से कहीं पहुंचते हो? द बेस्ट स्पीड दैट वी हैव इन टोक्यो, ये 8 किलोमीटर पर आवर होता है पीक टाइम पे। यदि पूरी सिटी ऐसी चलने लगी तो हेल्दी होगी, कर्क रोग कम होगा, हाइपरटेंशन कम होगा, ओबेसिटी कम होगी, डायबिटीज कम होगा, बहुत सारी चीजें कम हो जाएंगी। कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आई विल ट्राई एंड फिनिश एज क्विकली एज पॉसिबल। प्रिवेंशन से हम अब स्क्रीनिंग पे चले जाएं। अर्ली डिटेक्शन होना चाहिए। अर्ली डिटेक्शन से कर्क रोग पे मात हो सकती है, लेकिन कॉमन कैंसर का ही डिटेक्शन करना चाहिए, अनकॉमन कैंसर का डिटेक्शन नहीं करना चाहिए। यदि मैं चांदनी चौक में बैठ के यदि टाइगर को ढूंढना चालू करो तो बहुत तकलीफ है। मेरे सर में तकलीफ है और मुझे टाइगर तो कभी मिलने वाला नहीं है, लेकिन बहुत पैसा चला जाएगा उसमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉमन एनिमल है, जो कॉमन रोग है, उसे देखना आप चालू कीजिएगा। और अच्छा एविडेंस होना चाहिए कि ये टेस्ट करने से लोगों की जान बच सकती है और कर्क रोग का प्रमाण बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए 30 साल के बाद सर्वाइकल कैंसर, जो गर्भाशय मुख का कैंसर है, इसका स्क्रीनिंग होना चाहिए। ये या तो पैप स्मीयर से हो सकता है, या तो VIA एग्जामिनेशन है, विजुअल इंस्पेक्शन यूजिंग एसिटिक एसिड, इससे हो सकता है,
या ब्रेस्ट कैंसर 50 साल के बाद सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन करके हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। प्रोस्टेट, लंग, कोलोरेक्टल कैंसर शुड नॉट बी स्क्रीन्ड। ये स्क्रीन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रोस्टेट कैंसर तो अमेरिका भी अभी स्क्रीन नहीं करती। लंग कैंसर, कोलन कैंसर हमारे यहां बहुत रेयर है, स्क्रीनिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लंग कैंसर जो दिन में 10 से ज्यादा पैकेट सिगरेट स्मोक करते हैं और पिछले 20 साल से ज्यादा कर रहे हैं, इसमें शायद आप स्क्रीन कर सकते हैं। लेकिन ये पूछना जरूरी है कि हम वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए लें या न लें। What has been happening to current Indian women who were girls in 3 to 4 decades ago? ये सर्वाइकल कैंसर के बारे में प्रश्न है। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए सर्वाइकल कैंसर का प्रमाण, ये डेटा है मुंबई का। 1964 में ये प्रमाण 24.7 था हर लाख स्त्रियों में। आज 2012 में आज का आंकड़ा है 7। हम 7 पे बैठे हुए हैं हर 1 लाख स्त्रियों में मुंबई में। नेक्स्ट स्लाइड। ये डेटा है, नेक्स्ट वन प्लीज। बहुत कम हो चुका है चेन्नई में, 41 से 15, आज का आंकड़ा है 10, तो और भी कम हो रहा है। 2012 का आंकड़ा है, आज का आंकड़ा 10 है। आगे जाइए, नेक्स्ट स्लाइड। बार्शी में देखिए 34 से अभी तक 15 में आया है। अभी भी ये मैं अर्बन बार्शी की बात कर रहा हूं। बार्शी में एक अर्बन एरिया टेक्सटाइल टाउन तैयार हुआ है जिसमें नंबर अभी 15 से भी कम 10 के पास आया है और वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। लेकिन बार्शी रूरल में अभी भी आंकड़ा 25 के आसपास है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये फिनलैंड का डेटा है, सर्वाइकल कैंसर कैसे कम हो चुका है। 15 से लेकर 3.9 को आया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कैंसर इंसिडेंस हैज गॉन डाउन रिमार्केबली एज फार एज गर्भाशय मुख का कैंसर है। ये कैंसर बहुत कम हो रहा है और ये हुआ है एचपीवी वैक्सीनेशन के लेने के बावजूद, बिना लेने के भी ये हुआ है। तो यही कंटिन्यू होना चाहिए। समझो ये लिया जाए तो देखिए आंकड़े क्या है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एचपीवी इज नॉट अ डेडली इन्फेक्शन। आप देख लीजिए, यदि नहीं, इफ यू कैन, हाँ दैट्स गुड, कि एचपीवी में बहुत सारे ऐसे प्री कैंसरस कंडीशंस है कि एचपीवी हुआ लेकिन कितने लोगों में क्लियर हो गया। देखिए ये ग्राफ में मैं देखना चाहूंगा कि बताना चाहूंगा कि 90% लोगों में ये नेचुरली क्योर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सिमिलरली ये दूसरी ट्रायल है जहां कम होते होते सिर्फ रेजिडुअल एचपीवी ओनली इन 0.9%, सभी लोगों में बहुत कम हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ये परसिस्टेंट होने के बाद CIN3 में कब कितने लोगों में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी बहुत स्मॉल परसेंटेज में 10-12% में होता है और बाकी लोगों में तो बहुत ही कम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जब CIN2 ये प्री कैंसरस कंडीशन है, इससे इन्वेजिव कैंसर किन लोगों में होता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये CIN3 का डेटा है, 30% लोगों में CIN3 कन्वर्ट होगा इन्वेजिव कैंसर में, लेकिन 70% में नहीं होगा ये। और इसको कितने साल लगेंगे? 30 साल। 30 साल में ये कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। ये जानना जरूरी है कि एचपीवी इन्फेक्शन इज क्लियर नेचुरली, इन बहुत सारे लोगों में कम हो जाता है। परसिस्टेंट के होने के कारण CIN अनकॉमनली होता है और CIN जो है प्री कैंसरस कंडीशन है, ये 1/3 लोगों में कैंसर हो सकता है, लेकिन 70% में CIN3 भी नहीं होता। CIN2 तो सिर्फ 10% में और CIN1 2% से भी कम लोगों में कर्करोग बन जाएगा। तो इसके बारे में चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं। तो क्या करना चाहिए? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यदि 2017 में 1 लाख लड़कियों को हमने ये वैक्सीन दे दिया, तो इससे नेक्स्ट 50 सालों में
शायद 30,000 लोगों में ये इन्फेक्शन कम होगा, लेकिन फाइनली CIN3 सिर्फ 3 लोगों में या तो और भी कम लोगों में कर्क रोग कम होगा 2065 में। इतनी देर तक रुकना हमारे लिए वाजिब नहीं है, हमें आज सॉल्यूशन चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप ये चीज कर दीजिएगा, सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, चेंजिंग रिप्रोडक्टिव पैटर्न, 2 बच्चे और जब भी हो, यानी कि 20 साल के बाद हो, 20 और 30 के बीच में हो जाए, और इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करे, प्रोटेक्टेड सेक्स यूज करे, कॉन्डोम का यूज से भी ये कम हो जाता है। इंप्रूव्ड जेनाइटल हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारे मुस्लिम बांधवों में है ऑलरेडी, और बेटर न्यूट्रिशन, ईच ऑफ देम विल इंप्रूव द आउटकम रिमार्केबली, और कर्क रोग बहुत कम होने वाला है गर्भाशय मुख का। स्क्रीनिंग जरूर करना चाहिए, इसके बारे में मैं अभी बता दूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये डेटा है इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करने से कितने कम हुए हैं, यानी 50% से कम हुआ है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ गर्भाशय मुख। नेक्स्ट स्लाइड। उसी तरह एक मेटा एनालिसिस हुआ है जिसमें भी 50% कम हुआ है यदि आप इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज करो तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारे यहाँ का स्टडी है, बंबई में किया हुआ, डॉक्टर मित्रा ने ये किया है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्टडी है, 1,50,000 स्त्रियों में किया गया ये इंटरवेंशन है। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ सर्विक्स, ये 10वीं पास स्त्रियों ने, लड़कियों ने किया है, और 75,000 स्त्रियों में किया, और 75,000 स्त्रियों को सिर्फ ये बताया गया कि कर्क रोग कैसे कम किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए, 32% डेथ रेट कम हो गया है 12 साल में। 12 साल में 32% डेथ रेट कम हो गया, सिर्फ एक सिंगल टेस्ट जिसकी कॉस्ट है सिर्फ 12 रुपए। ये जर्नल ऑफ नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में 2014 में पब्लिश हो गया, और 32% लोगों की मौत कम हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, इन्हीं 1,50,000 स्त्रियों में हमने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जाम, नॉट सेल्फ एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन किया है ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर। नो मैमोग्राफी, नथिंग, नो कंप्रेशन, नो स्ट्रेस एज वेल एज रेडिएशन एक्सपोजर इज कंसर्न। स्क्रीनिंग आर्म में 641 कैंसर, कंट्रोल आर्म में, ये 20 साल के बाद का डेटा है, 2021 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश हो गया इस साल में। तो इनमें पहले कैंसर ज्यादा हुए स्क्रीनिंग में, और फाइनली ये कम होने लगे, और यही कैंसर कंट्रोल आर्म में कम थे, और फाइनली नो ओवर डायग्नोसिस, किसी को भी अननेसेसरी डायग्नोसिस में नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड। इससे अर्ली स्टेज, मेजॉरिटी अर्ली स्टेज में आ गए। स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट स्टेज माइग्रेशन दिखाया गया है कि अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। ये 50 के से छोटे उम्र में जो स्त्रियां हैं उनमें से ये डेटा है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं था डेथ में, मैमोग्राफी से भी कोई डिफरेंस नहीं है 50 के नीचे वाले स्त्रियों में। नेक्स्ट स्लाइड। लेकिन 50 के ऊपर वाले स्त्रियों में 30% रिडक्शन इन डेथ बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। सो अबव 50, a physical examination performed once a year will save 30% of lives at a cost which is very low, as well as no radiation exposure. Finally, what I wish to say is that other than these two cancers, ये जो कोई भी स्क्रीनिंग है, सर्वाइवल फिगर्स है, ये स्त्रियों में बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे हैं। God has been kinder to women and not so kind to men. All cancers have a greater mortality in men, and majority of the cancers I have dealt with only common cancers. Uncommon cancers like lymphoma, leukemia, some of the childhood cancers, some other cancers,
like pancreatic cancer, each of these cancers are so rare that they should not be screened. We don't know why do they occur, so there is no prevention for that. We are working on some cancers for Northeast, for Delhi, Punjab, and for Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal, जहां गॉल ब्लैडर कैंसर ज्यादा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि स्त्रियों में कुछ ससेप्टेबिलिटी है क्या इन कैंसरों की, और इस कैंसर से कुछ प्रिवेंशन हो सकता है कि नहीं. Suffice to say, screening can be done for common cancers. For uncommon cancers, it should not be done. यदि हर 100 लोगों में से 9 या 8 लोगों को पूरी जिंदगी में कर्करोग होता हो, तो हर साल में हम बाकी के 92 लोगों के कंटिन्यूअस टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि by the time you finish the last test, you will be ready for the first test again, और आप सब पूरी जिंदगी अस्पताल में ही काट लोगे कैंसर के डर से. इस रोग से यदि आज क्योर रेट 50 से 75% है, तो इससे डरना नहीं, इससे सतर्क रहना चाहिए. यदि आप इससे if you are scared of it, it's not appropriate. We need to be vigilant and not anxious. सतर्क रहिए, डरना चाहिए. Thank you very much. Can I have my next slide? That's my last slide. That's where I work in Tata Memorial Hospital. Thank you, sir, for a very enlightening talk, very easy to understand. I hope that the audience has gained a lot by hearing from your wise words, sir. Very, very comfortably explained to everyone. Thank you, sir. Now we have some questions coming in from our audience. So, sir, the first question that I would like to ask you is, sir, a lot of people are asking whether microwave and mobile usage do cause cancers, and is there any evidence for that? Microwave and mobiles don't cause cancer. There is strong evidence that it definitely doesn't cause large amount of cancers. If at all, यदि मैंने कहा कि 100 में से 8 या 9 लोगों को कर्करोग होते होंगे, तो ये आंकड़ा शायद 10 तक पहुंच सकता है, लेकिन ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है. Evidence is very clear that there is no such correlation. लेकिन आपको टीवी देखने से भी माइक्रोवेव आता है. माइक्रोवेव कम्स टीवी while you watch television. यदि आप टीवी बहुत देर तक, बहुत यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम that you spend time before television, if it is long, you will get cancer not because of microwave but because of inactivity. Thank you, sir, for explaining that to the audience. Now, another question is, people are asking that if there are pre-malignant conditions like leukoplakia in head and neck cancers, what should be the strategy that these patients should adopt so that it doesn't progress to full-blown invasive malignancies? मैं एक चीज कहूंगा इसके बारे में कि ल्यूकोप्लेकिया से कैंसर होना बहुत कम लोगों में होता है. एरिथ्रोप्लेकिया से ज्यादा कैंसर होते हैं, और ल्यूकोप्लेकिया का एरिथ्रोप्लेकिया में और एरिथ्रोप्लेकिया का कैंसर में कन्वर्जन यदि आप तंबाकू खा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा है. आप तंबाकू खा रहे हो तो बंद कीजिए, ये कम हो जाएगा. Thank you, sir. Another question is, are the vaccines available for cancer? And if yes, then should they be made mandatory? There are no vaccines for cancer. HPV is the only vaccination that is available for cervical cancer. But I explained to you what's its utility. आप यदि आज बच्चों को between girls between age of 9 and 13-14 before anybody becomes sexually active, ये दे दिया जाता है, लेकिन इसका असर आने को आपको 25 साल लगेंगे. तो what is important is
जो एडल्ट्स है टुडे उनको स्क्रीनिंग करना जरूरी है। Sir, continuing on to this question, there's another query that if someone has got married and has not taken the full dose of the Cervarix or vaccine available for carcinoma cervix, should the last dose that is missed can be taken after marriage and after being sexually active? Not necessary. But please understand, it is better if the husband is taught genital hygiene and genital hygiene is maintained in husband and wife. That is a better protection than the vaccine. That's a very good point, sir. Actually, most of the people in society think that vaccine is the answer to everything, but it is the personal hygiene of both the partners, which is very important. Dr. Sethi, I will elaborate a little bit on this. I was in Jaipur, and in one of the houses, there was a written kind of commandment as to who is to do what in a household. So the husband is supposed to earn money and run the house, give protection to the house. Wife is supposed to see that everybody is comfortable, including cooking. Today ये होने की जरूरत है, ऐसे नहीं है. The third thing which was important, which was mentioned, was the grandmother was supposed to teach the grandson between the age 9 and 11 genital hygiene. Now imagine, look at the propriety of writing this. Somebody had thought of this. किस लिए? Why not before 9? Before 9, physiological phimosis is extremely common. And if it is forced, retraction of prepuce for cleaning, the person might get paraphimosis. And that can be an emergency. So it has to be done only after the age of 9 when physiological phimosis goes away. And between 9 and 11. Just imagine, अपने पूर्वज इतने समझदार थे कि ये सब लिख के रखा है, हम करते नहीं. True, sir. Old is gold, as the saying goes. Sir, another question that has come up is that although it's absolutely baseless, but I just wanted to take it up because somebody's asking that whether COVID vaccines can cause cancer. No, it doesn't. I think this is a myth that is going around in the society. So we would like to hear from you, sir. It doesn't cause any cancer at all. So can be taken very safely. Please go ahead. Yes. Sir, okay, then coming to the last question, sir, another question is that are clinical trials for cancer being done in India? And if they are, is there any place from where more information regarding clinical trials are very much done in India? There is a portal of ICMR. If you go to ICMR website, there is a portal of clinical trials, which has listed all the trials that are running within India, and it is mandatory that all clinical trials are registered at this site and have been cleared by the recognized ethics committee in every hospital. Thank you for the information, sir, for the patients. It will be very useful. And now, once again, thanks for your enlightening talk, sir. I would like to hand over the proceedings to Dr. Anurag Mehta for his final comments and closure of the meetings. So thank you, Dr. Jaskaran, and good afternoon, all my dear participants. And let me begin by first thanking Dr. Badwe. डॉक्टर बड़वे ने आज जो हमें प्रिवेंशन और स्क्रीनिंग के बारे में बताया, ये बिब्लिकल गॉस्पेल माना जाए, इसको परम सत्य माना जाए और अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया जाए. अगर हम ये अडॉप्ट करेंगे तो हम अपनी कम्युनिटी में कैंसर्स के रेट को बहुत कम कर सकते हैं. और इतने अच्छे तरीके से ये सब कुछ बताने के लिए डॉक्टर बड़वे, आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू यू. प्रोफेसर्स इसी तरह से पढ़ाते हैं और एमिनेंट प्रोफेसर कुछ खास तरीके से पढ़ाते हैं, जो आज डॉक्टर बड़वे ने हमें दिखाया. पर जितने भी हमारी गेस्ट फैकल्टीज थी इससे पहले, जैसे डॉक्टर पवन गुप्ता, डॉक्टर सीमा गुलिया, डॉक्टर गौरी कपूर, डॉक्टर उल्लास बत्रा, डॉक्टर विनीत तलवार,
सबने हमें कुछ बताया कैंसर प्रिवेंशन के बारे में और कुछ बताया कि कैंसर क्यों होते हैं। और यही दो हमारे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जब भी कोई मरीज आता है, बोलता है ये मुझे क्यों हुआ, और उसके साथ पूछते हैं ये क्या फैमिली में हो सकता है, इसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये सब हमारा एक जो इस मिनी लेक्चर सीरीज का ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि इन कॉमन सवालों का हम आपके साथ जवाब शेयर कर सकें। और अगर मैं इन सब चीजों को सरमाइज करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि ये 7 पॉइंट्स हैं जो हमें अपने साथ रखने हैं। 7 is not just a lucky number, it is also a number of perfection and completeness, and it is also a number that gives us some sort of a mental and spiritual positivity. तो ये 7 टेनेट या ये 7 प्रिंसिपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे नहीं है, जो ये सब जो एक्सपर्ट्स लोग आए हैं जिन्होंने हमें बताया है और जो हम यूजुअली सुनते भी हैं। सो फर्स्ट इज डोंट यूज टोबैको। तो टोबैको जो है ये सिर्फ ओरल कैंसर और लंग कैंसर नहीं करता, ये तकरीबन 12 कैंसर करता है। ये माउथ से कहीं दूर जाके यूरिनरी ब्लैडर तक के कैंसर कर सकता है। तो टोबैको किसी भी फॉर्म में यूज करना जो है मुनासिब नहीं है, इससे दूर रहना ही मुनासिब है। दूसरा है ईट ए हेल्दी डाइट एंड ए बैलेंस डाइट। डाइट, ये जो फैट फूड सुपर फूड्स आते हैं, ये क्या है क्या नहीं, इनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। देख, जो हमें बताया गया है कि वी शैल हैव ए गुड कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, नॉट टिन्ड फ्रूट्स, ये बैलेंस फूड यूज करें और उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन रखें ग्रीन फूड्स का, वेजिटेबल्स का, और जंक फूड अवॉइड करें। और इसी तरह से प्रोसेस्ड मीट्स अवॉइड करें, जैसे डॉक्टर बडवे ने भी आज बताया कि processed meats, smoked meat, beef in too much quantity, they can all cause cancers. और अगर हमें अल्कोहल कंजम्पशन करनी है, जैसे डॉक्टर विनीत ने भी बताया था, तो हम कर सकते हैं। सोशल ड्रिंकिंग इज परमिसिबल बट इट शुड बी डन इन मॉडरेशन, अदरवाइज अल्कोहल कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू कैंसर। और सबसे जरूरी मुझे लगता है, जो कि एक बहुत जरूरी चीज है, वी मस्ट मेंटेन ए हेल्दी weight and we must indulge in physical activities. Generally, it is said that 120 to 150 minutes of moderate to vigorous activity is required for all individuals. और मेरा ख्याल है ये अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए 20 मिनट 6 दिन देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा ये सबको सुझाव होगा कि कम से कम 20 मिनट 6 दिन हफ्ते में थोड़ा मॉडरेट टू विगरस एक्सरसाइज करें। इसी तरह से, और ये देखा गया है कि ये रियली इम्पैक्ट करता है ब्रेस्ट कैंसर में, एंडोमेट्रियल कैंसर में और कोलोन कैंसर में, रिड्यूसेस द रिस्क एटलीस्ट इन दीज 3 कैंसर्स। और जैसे डॉक्टर बडवे ने बताया कि वैक्सीनेशन कैन हेल्प, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जितना भी टाइम लगेगा, जब भी इम्पैक्ट आने लगेगा, कम से कम तक तो एक कैंसर हम बहुत कम कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन, और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन से लिवर कैंसर को तकरीबन खत्म करने के वर्ष पे ले आए हैं। तो हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन और एचपीवी वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और डॉक्टर बडवे ने बड़े सटल तरीके से भी बताया अभी, जैसे हमें कि वी शैल अवॉइड रिस्की बिहेवियर, सो सेफ सेक्स, बिकॉज एचआईवी इन्फेक्शन से भी बहुत सारे कैंसर होते हैं, जैसे लिम्फोमा होता है, स्किन के कैंसर होते हैं, लिवर कैंसर होते हैं, एनल कैंसर होते हैं। तो ये सब बचाया जा सकता है बाय प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स एंड अवॉइडिंग एड्स। इसी तरह से मैं यूं तो नहीं मानता कि इंडिया में ये कोई प्रॉब्लम है ड्रग एडिक्शंस की, पर अगर एडिक्शंस की प्रॉब्लम है तो कम से कम नीडल्स जो है वो ना शेयर की जाए, ताकि एड्स और एचसीवी और एचपीवी ना फैले। और उसके बाद मेरा जो 7वां पॉइंट है, the 7th principle will be कि one should be aware of the early warning signs। कोई नॉन हीलिंग अल्सर है, कोई prolonged menstrual bleeding है, कोई मोल है जिसके कलर वगैरह चेंज हो गए हैं, सडन चेंज ऑफ वॉइस है, कफ है, अनप्रोवोक्ड वेट लॉस है, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आई थिंक इट इज अ टाइम टू सीक द एडवाइस एंड नॉट डिले सीकिंग द एडवाइस ऑफ अ फिजिशियन। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, ये मेरा ख्याल एक मैंने कोशिश की है समराइज करने की,
जो सारे हमारे बहुत फाइन एक्सपर्ट्स ने हमें पिछले इस मिनी लेक्चर सीरीज में बताया। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे से बिहेवियरल चेंजेस अडॉप्ट करके हम अपनी कम्युनिटी में we can at least make an attempt to make cancer a history. I will hope that all of you who have participated, you will share this information with others. And I would like to thank all the participants and the kind of questions they have asked. तो हम एक तरह से डायलॉग कर सके, वार्तालाप कर सके, rather than keeping a monologue where an expert speaks and goes away. तो इस वार्तालाप से मुझे लगता है आप लोगों को कुछ फायदा हुआ होगा डायलॉग से। और बिल्कुल अंत में मैं अपने सारे मॉडरेटर्स, अपनी मार्केटिंग टीम और उनके जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं, टेक्नो मैनेजमेंट सर्विसेज, इन सब का धन्यवाद करता हूं। और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ सिल्वर जुबली का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम ये पब्लिक एजुकेशन सीरीज लॉन्च कर सके। और वंस अगेन Dr. Badwe and all experts, I bow for your showing your solidarity in our this Silver Jubilee celebrations program. So thank you once again, everybody. God bless you and take care of yourselves. Thank you. Thank you very much. Thank you so much.